A very good evening, esteemed faculty, for today's session. Om Shanti to Shakti Raj Bhai. Coordinator for today's session, CA Dr. Falguni Bhatt. Chairman Ahmedabad Branch, CA Harit Dhariwal. Senior members and my dear friends. Welcome to the second day. Yesterday we had an amazing session of our own CA Dr. Falguni Bhatt on inner self digital detox, and today we again have a very beautiful session on remote control, happiness remote control, which is very unique. So let's begin the session with ICI motto. Request each one of you to place their right hand on their heart for ICI motto. यैष सुप्तेषु जागृति यैष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you, Shehzad Bhai. Welcome back. I would now request Chairman Ahmedabad Branch CA Harit Dhariwal to give opening remarks. Thank you, Anjali Ben. Very respected speaker for the session, Shakti Raj ji bhai. Om Shanti. Very happy to see Falguni Ben and our dynamic secretary Anjali Ben and all the participants. A very good evening to all of you. I think after the wonderful session that we had yesterday, regarding today's session, I will not take much time. I'll just say one thing, that both the points of today's sessions, we as professionals are always concerned of. Happiness, we always are craving for happiness, and tension, I think we have, our life is full of tension. So we all are looking forward to learning more about how to say hi to happiness and bye to tensions. Wonderful session planned, and we are so very excited to hear from Shakti Raj ji bhai for a wonderful session ahead. So without wasting much of a time, I would request Falguni Ben to please take the session forward. Thank you. जी, Om Shanti. Thank you Harit bhai. Thank you Anjali Ben. Thank you Ahmedabad branch. बस थोड़ा सा शक्ति भाई का परिचय दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल भ्राता जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद, अभिवादन है. उनके बारे में बताएं तो बीके शक्तिराज जी is a young technocrat by education and spiritualist. He is an eminent life coach, motivational speaker and international trainer in mind, power and memory management. He is faculty member of Brahma Kumari's various wings. He traveled throughout the world to spread the message of hope and harmony with the fragrance of divinity. और साथ में बोले तो डिग्री में तो he is a post graduate degree in information and technology, professional in multimedia, SAP ABAP consultant, PG diploma in counseling and spirituality. साथ में regarding services to society, he has program mind power meditation training in many countries of the world. थोड़ी फास्ट जा रही हूँ क्योंकि उनको सुनना है. Conducted training for cricketers of RCB IPL team and Indian cricket team to help them enhance their concentration, peak performance levels through meditation and mind training. Training and guiding Bollywood stars and producers. Very good, Brataji. And also conducting programs for chief minister and cabinet ministers of different states on mind power for good administration and stress-free, happy living. He has also addressed more than 20 national conferences of different wings of Brahma Kumari's organization. He has also shared spiritual knowledge to Honorable Fazal Rabi, Deputy Speaker, Bangladesh Parliament in past time. He has also received world record holder. He is also the world record holder in youngest spiritual trainer
in memory and mind management, and also second world record holder also in longest distance video recording during Brahma Kumari's Padayatra, almost 600 kilometers, we can say. Also, he has received Smriti Vikas Ratna Sunrise Peace Award 2010. Also received Youth Icon Award. So he is like celebrity in between us. तो ऐसी आत्मा अभी और एक लाइन में उनका इंट्रोडक्शन दूं तो टीवी में जो पीस ऑफ माइंड टीवी है, गॉडलीवुड स्टूडियो है, अवेकनिंग टीवी है, अवेकनिंग टीवी तो आप सब जानते ही हैं, है ना, और ई टीवी है, दूरदर्शन है, लोकल जितने भी स्टेट्स में उन्होंने सेवाएं दी है, वहाँ की लोकल चैनल, सब चैनल्स में उनका प्रोग्राम होता रहता है। तो ऐसे भ्राता जी जो ज्ञान में पिछले 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं, पिछले 25 साल से ज्ञान में है और 10 साल से समर्पित रूप से यानी माउंट आबू में सेवाएं दे रहे हैं। बाकी जब भी वो लौकिक में जॉब वगैरह करते थे तो साथ साथ में उन्होंने सेवाएं तो अपनी दी है, ब्रह्मा कुमार है, यानी सिंगल रूप से वो सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसी जो सर्विसेज के लिए हमको बहुत गौरव महसूस होता है कि ऐसे भ्राता जी को एक अपनी बहन, स्वीट सिस्टर कह सकती हूँ भ्राता जी, तो वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज बाबा का भी धन्यवाद है कि ऐसे भ्राता जी भी हमारे बीच में हैं। और आप सभी जो अभी दर्शक मित्र हैं वो सभी को भी आपका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हम भाई जी को सुने, भ्राता शक्तिराज जी। ओम शांति। ओम शांति। रिस्पेक्टेड हरीश जी, रिस्पेक्टेड अंजलि जी और फाल्गुनी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया। हैप्पीनेस के वाइब्रेशन, जैसे कोरोना स्प्रेड हो रहा है ऐसे ही हैप्पीनेस सबसे ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है, क्योंकि हैप्पीनेस के जो वाइब्रेशन है बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जेटिक है। तो अब हमें पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस को स्प्रेड करना है, इसलिए खास आज मैंने जो डीपी, जो जूम की आईडी में खास हैप्पीनेस का स्टेटस लगा कर रखा हूँ, ताकि हम जैसे ही देखें तो हमारा चेहरा मुस्कुराए। हमने बहुत दिन से, मैं जब भी प्रोग्राम कराता हूँ हैप्पीनेस के पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो अक्सर मैं बात करता हूँ हम कितने दिन से नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो कईयों के जवाब आते हैं, सर 1 महीने से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, सर 2 महीने से, कई तो कहते हैं सालों से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। पहले कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद, पहले शादी के पहले बहुत मुस्कुराता था, कईयों की खुशी गायब हो गई। कई प्रकार के ऐसे फीडबैक्स हमारे सामने आते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं कि हैप्पीनेस को हाई और टेंशन को बाय बाय। तो बहुत अच्छी एक एंथम हमने ICAI की किया अभी, ऐसे ही एक हैप्पीनेस की एंथम है, और हैप्पीनेस की एंथम है हैप्पीनेस, हैप्पी रहना। तो हैप्पीनेस का जो प्रणाम है वो मैं आपको सिखाता हूँ, वैसे ही सभी को करना है। और मैं सभी पार्टिसिपेंट को फुल स्क्रीन में लाता हूँ, वीडियो ऑन कर लेंगे। तो हैप्पीनेस प्रणाम करेंगे। सबसे पहले कहेंगे हैप्पीनेस को हाय और टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। जैसा हमारे बॉडी का पोस्चर होगा वैसे माइंड का स्टेटस होगा, और जैसे माइंड का स्टेटस होगा वैसे हमारी बॉडी का सिस्टम होगा। बॉडी में वैसे ही फील होगा, बॉडी में वैसे ही रिएक्शन होगा। कोरोना से, बीमारियों से ज्यादातर प्रॉब्लम माइंड में होती है, और माइंड का जो डर है वो बीमारी को बढ़ाता है। दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, सो सभी 5 बार करेंगे हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। वंस अगेन, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाई, कोरोना बाय बाय। कोरोना को भी बाय बाय करना है। तो एक छोटी सी स्टोरी से अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूंगा कि एक बार एक राजा रहते हैं। राजा, उनकी बहुत शान शौकत रहती है, बहुत बड़ा महल रहता है, उनके पास कोई कमी नहीं रहती है, बहुत कुछ रहता है उनके पास। पर एक बार होता क्या है कि उनके घर के, उनके महल के सामने एक छोटा सा झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी रहती है। तो झोपड़ी में कुछ मजदूर रहते हैं। तो मंत्री से वो डिस्कस करते हैं राजा कि भाई हमारे पास इतनी शान शौकत, इतनी मुद्राएं, सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। जितना हैप्पी रहना चाहिए, जितना सेटिस्फाइड रहना चाहिए उतना नहीं है। पर इनको देखो, ये हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा झूमते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो व्हाट इज द सीक्रेट? इनके जीवन का क्या, इनके जीवन का पीछे का रहस्य क्या है? तो अपने मंत्रियों को, गुप्तचरों को भेजते हैं उसके पीछे कि क्या है इसके पीछे राज।
तो मंत्री और गुप्तचर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत अच्छा सीक्रेट होता है कि वो अपना कमाते हैं, खाते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं, क्योंकि वो एक चक्र में नहीं फंसे होते हैं। वो एक चक्र होता है 99 का चक्र, बहुत खतरनाक चक्र है। अब राजा कहता है इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करो, देखते हैं कि वो उससे बच सकते हैं कि नहीं। तो मंत्री क्या करता है, 99 कॉइन लेता है और राजा के आदेश अनुसार उस झोपड़ी में उस मजदूर के घर में रख देता है। तो जैसे ही उस घर में वो रखता है, अब वो मजदूर लौट कर आता है। मजदूर जैसे ही लौट कर आता है तो वो देखता है कि 99 कॉइन है। कितने? 99। वो गिनता है, एक बार गिनता है, 2 बार गिनता है, 3 बार, 10 बार गिनता है, पर वो 99 ही निकलते हैं। फिर अपनी वाइफ को कहता है कि आप गिनिए, तब भी 99 निकलते हैं। अपने बच्चों को कहता है गिनिए, 99 ही निकलते हैं। अब क्या होता है कि वो सोचता है 100 तो करना पड़ेगा। अब वो मेहनत करना शुरू करता है, यहाँ वहां ये वो सब करना शुरू करता है और एक कॉइन कमाता है। इतने में अपनी उस देखता है, जैसे ही वो अपने कॉइन को गिनना शुरू करता है तो उसकी जो पत्नी है 4 कॉइन ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती है। फिर वो 1-2 कॉइन कमाता है, फिर उसके बच्चे खर्च कर देते हैं। अब राजा कहता है उसका स्टेटस देखो, उसकी हैप्पीनेस का स्टेटस देख के आओ कि क्या है। तो मंत्री खबर लाता है कि सर वो फुल टेंशन में है, फुल जो उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन था, खुशी थी, वो सब गायब हो गई है, वो 99 के चक्कर में फुल आ गया है। तो ऐसे ही यदि सही में देखा जाए तो उसके पास 99 था, वो उसका एंजॉय नहीं कर रहा था, उसकी खुशी, उसका आनंद नहीं उठा रहा था, पर जो एक नहीं है उसके पीछे भाग रहा था। हम अपने जीवन में अपने आप से पूछें कि जो मेरे पास है 99%, उसका मैं लाभ उठा पा रहा हूं? क्या उससे मैं सेटिस्फाइड हूं? क्या मैं उससे खुश हूं? क्या मैं हमेशा भागते रहता हूं? एक बहुत अच्छी एड आई थी कुछ दिन पहले कि एक मर्सिडीज वाले ने कहा कि मुझे कार में मजा नहीं आ रहा है, कुछ स्टेटस नहीं आ रहा है, हमारे पास और कुछ बड़ी कार होना चाहिए, जागुआर होना चाहिए, बेंटली होना चाहिए, और बड़ी कुछ कार होना चाहिए, उसमें कुछ रुतबा होगा, उसमें कुछ और शानो शौकत होगी। तो उतने में एक और उसके पास बंदा आता है और कहता है कि सर आपकी कार बहुत अच्छी है, आपकी जो मर्सिडीज है बहुत अच्छी है, मेरा एक सपना है कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूं अपने जीवन में। तो फिर उसको एहसास होता है वो मर्सिडीज वाले को कि रियल में मैं अपनी जगह सही हूँ, किसी की जो किसी का सपना है वो मेरे जीवन में है। अब जो जो बंदा था जो मर्सिडीज वाले को बोल रहा था, वो अपने कार के पास जाता है और कार को जस्ट कुछ ना कुछ मारने लगता है, अपना गुस्सा निकालता है कि मेरे जीवन में यही कार है, उसके पास एक छोटी कोई कार होगी, इनोवा होगी। तो फिर एक और वहां से एक बहन आती है और कहती है कि क्यों मार रहे हैं आप अपनी कार को? तो वो कहता है कि क्या है मेरे जीवन, मेरे पास इनोवा है, लोगों के पास देखो मर्सिडीज है, प्रेरी है, बेंटली है, जगुआर है, कितना उनके पास शानो शौकत है। तो वो बोले आपके पास तो फिर भी इनोवा है, मेरे पास तो एक टू व्हीलर है। तो फिर वो कहता है कि नहीं ठीक है, मेरे लाइफ में कम से कम इनोवा तो है। अब वो जो टू व्हीलर वाली जो कहते हैं कि मेरे पास क्या है मेरी लाइफ, मेरे पास तो टू व्हीलर है। तो जो साइकिल वाले को देखता है तो कहता है कम से कम टू व्हीलर तो है। अब वो साइकिल वाला कहता है यार मेरे पास क्या है, साइकिल ही है। तो एक देखता है वो जो हैंडीकैप है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो हैंडीकैप है और वो व्हील चेयर में जा रहा है। तो हमारे पास जो है उसके लिए हम भगवान का शुक्रिया करें, सेटिस्फाइड होना चाहिए अपने आप से। चलिए, तो इससे हम ये समझते हैं कि हमें कभी भी 99 के पीछे नहीं भागना, जो है हमारे पास उसके लिए भगवान का शुक्रिया करना है, थैंक्स करना है। जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर अभी भाग ले रहे हैं, सभी से निवेदन है, सभी मुस्कुराइए। चलिए सभी मुस्कुराइए, मुस्कुराइए सभी। एक बच्चा दिन में 334 बार मुस्कुराता है। सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक बंद रखेंगे प्लीज। सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराएं। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, सभी मुस्कुराइए। जी,
अब मुस्कुराते मुस्कुराते कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, दुख की बात, चिंता की बात, घर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, है ना, घर बिजनेस की टेंशन, म्यूचुअल फंड की टेंशन, शेयर मार्केट की टेंशन, लाइफ की कोई भी प्रकार की टेंशन, पहले मुस्कुराइए फिर सोचकर बताइए। क्लाइंट की टेंशन, ऑडिट की टेंशन, एनीथिंग, पहले मुस्कुराना है और फिर सोचकर बताना। पहले मुस्कुराइए, मुस्कुराते मुस्कुराते, सेम कंडीशन है मुस्कुराना है, और मुस्कुराते हुए एट अ टाइम सोचकर बताइए कोई टेंशन की बात, कोई दुख की बात, कोई चिंता की बात। मुस्कुराइए, मुस्कुराते मुस्कुराते। मुस्कुराते मुस्कुराते टेंशन की बात, दुख की बात, चिंता की बात, घर की टेंशन, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, एनीथिंग सोचकर बताइए। कंडीशन है, मुस्कुराते रहिए। सिर्फ मुस्कुराना है, कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं दिया है। कई लोग को बहुत तकलीफ हो रही है मुस्कुराने में, बहुत छोटा सा फर्क है। प्लीज मुस्कुराइए। और जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक दूसरे को मुस्कुराते हुए, तो कितनी खुशी हो रही है, कितनी हैप्पीनेस स्प्रेड हो रही है। देखिए एक दूसरे को हैप्पीनेस, कितने सारे मुस्कुराते चले। सभी प्लीज सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, जो भी इस सेशन में है सभी वीडियो ऑन करिए। दुख की बात सोचिए, टेंशन की बात सोचिए। आ रहा है, नहीं आ रहा है? जब हम मुस्कुराते हैं तो सारी टेंशन से दूर हो जाते हैं, सारी बातों से दूर हो जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, राइट? उसको देखना है और समझना है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मैं ही हूँ जो ये प्ले कर रहा हूँ। और इसमें आपको जितना मुस्कुराना हो, जितना हंसना हो, जितना आप अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। वीडियो आपके सामने। फाल्गुनी में आवाज आ रही है? गाने की आवाज आ रही है? Yes, sir, we can hear. We can hear. Yeah. ओके, थैंक यू। यस यस। एंजॉय करेंगे सभी, क्लैपिंग भी करते जाएंगे म्यूजिक के साथ में। One, 2, 3, 4। out of control, होठों को करके गोल, क्लैप करते जाएंगे। होठों को करके गोल, टेप बजा के बोल, life हो out of control, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, टेप बजा के बोल। अंडे का क्या होगा? अरे लाइफ में एक बात तबे पे भाई होगा। न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। क्लैपिंग करते जाएंगे। सीढ़ी बजा के बोल भैया। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। फिर जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल रख के हाथ उससे तो बचलाए, दिल की इडियट है प्यार से उसको समझाए, और घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया।
चिपकी पी गया दारू हम तो फिर भी मिटा नहीं, अगर बत्तियां राख हो गई गोड़ तो फिर भी बिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होट घुमा सीढ़ी बजा के क्या होगा, और लाइफ में क्या होगा, कोई लगा अपना फ्यूचर क्या होगा, और घुमाओ सीढ़ी बजा ऑल इज वेल। तो हमेशा हमें मुस्कुराते रहना है। अब मुस्कुराते मुस्कुराते सोचिए कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई दुख की बात आ रही है, हमेशा हम खुशी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पोस्टपोन करते हैं कि मैं 12th पास हो जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक बार ये 12th की टेंशन, बोर्ड एग्जाम की टेंशन दूर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक बार मैं ग्रेजुएशन कर लूं फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। अब मैं एक बार जॉब पा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब फिर आगे मैरिज हो गई तो खुश हो जाऊंगा, बच्चे को अच्छा स्कूल में एडमिशन मिल गया तो खुश हो जाऊंगा। अब बच्चों की मैरिज हो गई तो खुश हो जाएंगे, फिर उनको सेटअप करने में खुश हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे को सेटअप करना है। तो खुशी है कहाँ? खुशी को तो हमने इधर पहुंचा दिया, इधर पहुंचा दिया। हमेशा हमने खुशी को पोस्टपोन किया। कहते हैं खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही एक रास्ता है। आपको खुशी पाने के लिए अपनी मेहनत नहीं करनी है, पर खुश रहकर मेहनत करनी है। तो खुशी आज है, खुशी कल नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल, मैं आज कोई साइंटिफिकली और कुछ जो फिजियो क्या कहते हैं साइकोलॉजी की बात नहीं करूंगा, मैं बहुत सिंपल रीति से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। क्या आपको कोई दुखी कर सकता है? आंसर दीजिएगा सभी जिनको भी आंसर देना है। क्या आपको कोई दुखी कर सकता है? क्या आपकी हैप्पीनेस कोई छीन सकता है? क्या आपको कोई स्ट्रेस में ला सकता है? क्या आपको कोई टेंशन में ला सकता है? ये मेरे क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक लाखों लोगों से पूछे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। अंजू जी ने कहा है, फोरम जी कह रहे हैं नो जी, चैटिंग में देख रहा हूं। तब तक हम बहुत अच्छा उनका आया, अंजू जी ने भी बोला है जी, और बढ़ेगी। हाँ जी, सुमित जी ने बोला ओके जी जी, आंसर आते जा रहे हैं, आंसर देते जाइए चैटिंग में। गुड, चलिए हम डेमो करते हैं, प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। मेरे साथ डेमो में कौन आएगा? कौन आना चाहता डेमो में? रेज योर हैंड। तो यूथ भाई आ जाइए।
माइक ऑन करेंगे जिनको भी डेमो में आना है। चलिए, मैं यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है मुझे। रेज योर हैंड। ओके, चलिए मैं यहाँ से असीता बहन को लेता हूँ। असीता जी माइक ऑन करेंगे। ओके, असीता गुप्ता जी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ जी। जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। जी, रेडी। ओके, असीता जी, क्या आपको कोई दुखी कर सकता है? क्या आपको कोई टेंशन में ला सकता है? क्या आपका स्ट्रेस कोई स्ट्रेस में ला सकता है? नहीं, जब तक मैं नहीं चाहती कि मैं स्ट्रेस में आऊं। पर होता है कि नहीं? मतलब होता ये तो है। हमने बता होता है। दिया, पर कोई कुछ बोलता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि निश्चित तौर पर हम दुखी हो रहे हैं। मतलब कोई दुखी हमको कर सकता है, ऐसा है? यस और नो, असीता जी? यस। मैं आपको असीता जी, मैं आपको 2 ग्लास देता हूँ। एक में बहुत अच्छा पानी है, राइट? पानी भरा हुआ है, मिनरल वाटर है। हाँ जी। और दूसरे ग्लास में पानी बहुत अच्छा है, पर थोड़ा 2-3 बूंद जहर है। कौन सा ग्लास लेना पसंद करेंगे आप? पानी वाला। पानी वाला। जहर वाला ट्राई नहीं करेंगे थोड़ा सा? ना। ना, ठीक है। तो आपने चॉइस किया ना कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, चॉइस हाँ किया ना? जी। हाँ जी। अच्छा, अब वो पानी जो पानी है, जो अमृत वाला है, एक अमृत वाला है, एक जहर वाला है। तो अमृत पिएंगे तो इफेक्ट आएगा या बिगर देखे देखे इफेक्ट आएगा? देख के भी आएगा। नहीं, अब चांद तो है, दुनिया में है, ठीक है ना? वहां जाकर आप एंजॉय करेंगे या फिर देखकर एंजॉय कर सकते हैं? देखकर। देखकर, पीकर नहीं। अच्छा, आपको भूख लगी है, सिर्फ आप देखकर, खाना देखकर भूख मिट जाएगी आपकी? नहीं, खाना तो होगा, पर देख के संतुष्टि तो आ जाती है। नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा ना, तभी तो एनर्जी आएगी ना। हाँ तो जी। हाँ जी। एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब आप उसको लेंगे, पानी को पिएंगे तो एनर्जी आएगी, हाँ अमृत जी। पिएंगे तो उसका इफेक्ट होगा, राइट? अच्छा, हाँ। जहर पिएंगे तो डेड होंगे या बिगर पिए डेड हो जाएंगे? बिगर पिए थॉट से ही डेड हो जाएंगे। बिगर पिए आप तो ये जहर है। ये जहर है, मेरे में जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, वो एक एडवांस कंडीशन हो गई। पर नॉर्मल हाँ। कंडीशन में पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को जहर पिलाएंगे तो मरेगा या फिर सिर्फ दूर से देखा जाए 1 किलोमीटर दूर से तो मर जाएगा? पिलाएंगे तो मरेगा, अगर प्रैक्टिकली। ओके, हाँ। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने हमें कहा कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कारण ही मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, आपने मेरे जीवन को प्रॉब्लम पूरे दुख से भर दिया है, आप ही इसी की जड़ है। ऐसे बहुत सारे थॉट का हमला उन्होंने किया, राइट? और वो सारे थॉट हमने ले लिए। अब वो सारे थॉट हमने ले लिया, अब लेने के बाद हम स्टोरी बना रहे हैं, अरे मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इस सब कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम है। और खुद अपने बारे में जब हम स्टोरी बनाना शुरू करते हैं, जब हम बार बार उसको सोचते हैं, तो जहर हमारे अंदर जाता है और हमारी खुशी गायब हो जाती है। अच्छा, किसी ने कुछ कहा और हमने लिया ही नहीं, तो कोई इफेक्ट होगा? नहीं। किसी ने कहा आप कोई काम की नहीं हो, तो मन में कमांड करना कैंसल कैंसल। लिया ही नहीं है तो कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। और ले लिया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, राइट? हाँ जी। मम्मी, जब बच्चा पैदा होता है तब से 16 साल की उम्र तक इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और भी बाहर के सराउंडिंग्स में इतने ज्यादा नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। अमेरिका में रिसर्च हुआ कि 36 आवर्स की डीवीडी फुल हो जाएगी, इतने ज्यादा नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं। तू गधा है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा,
तुम डंकी हो, तुम पुअर हो, तुम्हारा स्टडी मैथ्स वीक है, तुम्हारी इंटेलिजेंस ठीक नहीं है, तो ऐसे ऐसे नेगेटिव इंस्ट्रक्शन जब दिए जाते हैं तो बच्चे की मेंटल ब्लॉक बन जाता है और वो बच्चा सही में कहता है कि मेरे पेरेंट्स झूठ थोड़ी बोलेंगे, सही में मैं ऐसा हूं, वो मान लेता है और वैसे ही बन जाता है। हाँ जी। अब मैं बच्चों को क्या सिखाता हूं, जब भी कोई नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे तो मन में कमांड देना है कैंसल कैंसल। क्या कमांड देंगे? कैंसल कैंसल। ठीक है। अब मम्मी, बच्चे जो सुन रहे होंगे, तो मम्मी ने कहा कुछ ऊटपटांग कुछ भी व्यर्थ बोला तो उनको डायरेक्ट मुंह में नहीं बोलना, पर माइंड में कहना है कैंसल कैंसल, नहीं तो मम्मी कान के नीचे 3 बजाएगी, राइट? डायरेक्ट नहीं बोलना है। एक छोटी सी स्टोरी से क्लियर करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, पूरे इंडिया से मेंढक की रेस होती है। मेंढक पूरे इंडिया से एक धावक मेंढक होते हैं, मेंढक की रेस होती है। अब जैसी रेस होती है तो जो दर्शक मेंढक होते हैं वो कहते हैं आगे चोटी है, आगे खाई है, आगे बहुत बर्फ है, आप नहीं चल पाएंगे, कुछ तो दूरी तक और आगे बढ़ता है। फिर वो कहता है आगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन है, आगे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, आप नहीं चल पाएंगे। तो कुछ धावक रुकते जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते जाते हैं, पर अंततः एक युवा मेंढक ही उस सफलता के शिखर में पहुंचता है। उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का क्या राज है? तो जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो पता चलता है वो मेंढक बहरा था, वो मेंढक सुन ही नहीं सकता था। इसी प्रकार यदि आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा, नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा। हमारे संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय दादी जानकी जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये गलत है। जब आप नेगेटिव को यहां से सुनेंगे, भगवान ने सुपर कंप्यूटर दिया है, ट्रिलियन डेटा को एक साथ प्रोसेस करने वाला सुपर कंप्यूटर ब्रेन दिया है। जब आप यहां से सुनेंगे और यहां से निकालेंगे तो बीच में प्रोसेसिंग हो जाएगा, सब अंदर चला जाएगा, तो क्या खाक निकालेंगे? तो दादी जी कहती हैं नेगेटिव को सुनना ही नहीं है, कैंसल, और पॉजिटिव को सुनना है तो अंदर डालना, निकालना नहीं है। चेंज, कंसेप्ट चेंज। पॉजिटिव को सुनना है तो अंदर डालना, निकालना नहीं, और नेगेटिव को सुनना। शक्ति भाई जी शक्ति भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। अच्छा जी, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ कोई बात। अभी आ रही है क्लियर? नेट में जी प्रॉब्लम? अभी हाँ जी जी, यस यस। कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज है, हमारी जो जीवन का रिमोट कंट्रोल वो हमारे पास है। जैसे कि एक टीवी है, टीवी में आज तक चैनल चल रहा है, हमको आज तक नहीं देखना है, हमको आस्था चैनल देखना है, हमको संस्कार चैनल देखना है। तो हम ऐसे सिर पकड़ कर नहीं बैठेंगे कि हाय मेरे जीवन में ये आस्था है, आस्था ही लिखा है क्या, मेरे जीवन में डिस्कवरी ही लिखा है क्या? हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना रिमोट कंट्रोल उठाएंगे टीवी का और रिमोट कंट्रोल से उसको चेंज कर देंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब टेंशन आ रही है, दुख आ रहा है, चिंता आ रही है, तो हम खुशी के वाइब्रेशन में जाना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन हटेगा और हमें खुशी, हमारे जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम 1 मिनट हैप्पी रहते हैं, 1 घंटे तक खुश रहने की संभावना बढ़ जाती है। फिजिकली हम ट्राई करें, मेंटली अपने आप होगा, और मेंटली हम ट्राई करेंगे तो फिजिकली होगा। बोथ आर कनेक्टेड। ये बहुत प्रैक्टिकल घटना मैं आपको बता रहा हूं कि सोलोमन आइलैंड्स में आदिवासियों को जब पेड़ों का कोई हिस्सा काटना रहता है, पेड़ों को वो काटते नहीं है, वो पेड़ों के पास जाते हैं, जी भरकर गालियां देते हैं, कोसते हैं, चिल्लाते हैं, पेड़ उस नकारात्मक एनर्जी को रिसीव करते हैं और अपने आप मर जाते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी को या कोई हमको नेगेटिव कहता है, यदि हम उसको रिसीव करते हैं तो उसका इफेक्ट होता ही है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, एक व्यक्ति को फांसी की सजा, ऑलरेडी उसको फांसी की सजा होने वाली थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके ऊपर तो हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं, इसको फांसी की सजा होने वाली है। डॉक्टर ने उसको कहा कि हम आपके ऊपर कुछ रिसर्च करेंगे, आपको ऑलरेडी फांसी की सजा होने वाली है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम आपको सांप से कटवाएंगे, और सांप इतना डेडली है, इतना खतरनाक है कि सांप आपको काटेगा और 30 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। और उसको दिखाते हैं सांप और 9 to 1 काउंट करते हैं, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 बोलते हैं और सांप को अलग कर देते हैं, 2 पिन चुभा देते हैं। जैसे ही कैदी के माइंड ने रिसीव किया इस सांप ने काटा है, उसकी 30 सेकंड के अंदर डेथ हो जाती है। सबसे ज्यादा सोचने और विचारने की बात है कि जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके अंदर जहर पाया जाता है। किसने बनाया जहर? उसके माइंड ने जहर बनाया। मीराबाई को क्या पिलाया गया था? जहर। और उनके माइंड के कन्वर्टर ने उसको चेंज कर दिया। मन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत जबरदस्त शक्ति है। एक पॉजिटिव संकल्प हजारों नेगेटिव थॉट से ज्यादा शक्तिशाली है। और आप अपने हैप्पीनेस से सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर हैं। एक संकल्प, वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। एक संकल्प। आज देखा जाए लोगों के पास सब कुछ सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, किचन सेट है, ज्वेलरी सेट है, एवरीथिंग सेट है, पर माइंड अपसेट है। सेट होना चाहिए माइंड। आज देखा जाए तो आज पूरी दुनिया एम के ऊपर डिपेंड है। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट, इवन मोदी जी, एवरीथिंग डिपेंड ऑन एम। बट होल दुनिया के जितने भी एम है वो डिपेंड है एक और एम के ऊपर है, वो है माइंड। और माइंड को रिचार्ज करने के लिए जैसे कि हम भोजन करते हैं तो बॉडी चार्ज होती है। विद द हेल्प ऑफ फूड वी कैन चार्ज अवर बॉडी, विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वी कैन चार्ज अवर बाइक एंड कार। बट हमने ये कभी अपने आप में नहीं सोचा कि हम अपने माइंड को कैसे चार्ज करें। और जब माइंड चार्ज नहीं होता है, बैटरी उसकी लो होती है, तो ईर्ष्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हैप्पीनेस गॉन, चिंता, दुखी रहना, लोनलीनेस, ये सारी बीमारियां डिप्लीटेड एनर्जी का कारण है। फिर क्या होता है, हम हैप्पीनेस किसी ना किसी से मांगते रहते हैं। सपोज एक भिखारी है मंदिर में और एक भिखारी के पास एक बड़ा बंदा जाए और कहे कि आप मुझे भीख दे दो, अच्छा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। आज देखा जाए सब एक दूसरे से मांग रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मांग रहे हैं। प्रैक्टिकल जब मैं प्रोग्राम कराता हूँ, अभी बहुत पहले पिछले साल मेरा एक प्रोग्राम अम्बावाड़ी के रिवर फ्रंट में हुआ था, तब हमने प्रैक्टिकल रूप में बताया था। जूम में तो वो प्रैक्टिकल हम नहीं करा सकते हैं, तो फिर भी मैं, आप अंडरस्टैंड करिएगा, आप विजुलाइज करिएगा कि हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ को कहता है कि आप मेरी इज्जत किया करो, मांग रहे हैं आप मेरी इज्जत किया करो, आप मेरा सम्मान किया करो। अब वाइफ कहती आप मेरा सम्मान किया करो, आप मेरी इज्जत किया करो, मैं कितना खाना बनाती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। पति कहता है मैं भी कितना काम किया करता हूँ, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, कितनी पचड़ है, कितनी टेंशन है। तो बोले, फिर पत्नी कहती है मैं कितना मैनेज करती हूँ बच्चों को, आप मेरी रिस्पेक्ट किया करो। अब दोनों जब पास आते हैं, ठीक है ना, उनकी फाइटिंग हो जाती है। 68 लाख केस तलाक के पेंडिंग है अभी कोर्ट में। कारण नेगेटिव वाइब्रेशन, बोथ हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में नेगेटिव वाइब्रेशन। अच्छा, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है थॉट से। दो है, इन्होंने एक वाइब्रेशन दिया, जैसे देखते हैं ना महाभारत में, यहां से तीर गया, अर्जुन ने छोड़ा, एक तीर गया, वो जो बिल्कुल आग लगते हुए तीर गया, यहां से भी फिर माइंड में आता है इसके कारण अच्छा ये एनर्जी आ रही है, वो भी वहां से निकालता है ओम, और फिर वहां से वो छोड़ता है, राइट। अब दोनों टकराते एकदम से ब्लास्ट होता है, तो वो कौन सी एनर्जी है? यहां से जो हम थॉट भेजते हैं किसी के भी प्रति, हम जो थॉट भेजते हैं उसको टच होता है, और वो काउंटर थॉट हमें ऑटोमेटिकली रिवर्स होकर आता है। सपोज एक प्रैक्टिकल करते हैं, हाथ ऐसा करिए, सभी हाथ ऐसा करिए। अब मैं जैसे ही 3 2 1 कहूंगा, आपको एक बॉल फेंकनी है, राइट। पहले फेंकेंगे व्हाइट बॉल, दीवार में फेंकनी है। 1 2 3 एक रिटर्न थ्रो, 1 2 3 व्हाइट फेंकिए। कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? व्हाइट आएगी रिटर्न। ब्लैक फेंकिए, 1 2 3 व्हाइट फेंकिए। अब ब्लैक फेंकिए, सॉरी 1 2 3 ब्लैक, कौन सी रिटर्न आएगी? ब्लैक। 1 2 3 येलो, कौन सी रिटर्न आएगी? येलो। 1 2 3 रेड, कौन सी रिटर्न आएगी? रेड। 1 2 3 पिंक, कौन सी रिटर्न आएगी? पिंक। अब सपोज सेट करिए कि आपके सामने, ठीक है ना, बहन जी है तो समझिए कि हस्बैंड है आपके सामने, भाई है तो सोचिए वाइफ है। आप फेंकते जाइए वाइफ ना, आप ब्लैक फेंका तो ब्लैक रिटर्न करेंगी बहन जी, ठीक है। अब ब्लैक बहन जी ने फेंका तो भाई जी रिटर्न करेंगे ब्लैक। अब आपने फेंका
टेंशन, वाइफ ने फेंका, हस्बैंड ने फेंका वाइफ के ऊपर टेंशन, तो वाइफ क्या रिटर्न करेगी? बोलिए, टेंशन ही रिटर्न करेगी। उसके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं होने वाला है। जो एनर्जी सामने से आएगी वही एनर्जी रिटर्न में आने वाली है। अब फेंकिए खुशी, दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं सब खुश हो जाएं, रिटर्न क्या आएगा? खुशी, राइट? चलिए, हम जो एनर्जी हम सेंड करते हैं, जो एनर्जी हम भेजते हैं, वही हमें रिसीव होती है। तो हम अब पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, राइट? चलिए, सभी तैयार हो जाइए। सब कुछ डिपेंड यहां पर है, जो एनर्जी हम भेजेंगे। क्या चाहते हैं हम अपनी लाइफ में? दुखी होना, चिंतित होना, डिप्रेशन में होना, या खुश होना? खुश होना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करिए, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। आपको किसी ने कहा भंगड़ा करो, किसी ने कहा कथकली करो, किसी ने कहा कुचिपुड़ी करो, किसी ने कहा मराठी का लावनी करो, किसी ने कहा गरबा करो। अब एक साथ ये सारे डांस कर लेंगे आप? आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल 4-5 लोगों के हाथ में, और वो अपना अपना डांस कराना चाहते हैं। आपको क्या करना है? उन सब से अपना रिमोट कंट्रोल लेना है और रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है, क्योंकि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर आप खुद संतुष्ट होकर सबको संतुष्ट कर सकते हैं। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। सब अपना अपना डांस कराने की कोशिश करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो वो खुद इरिटेट होंगे और आपको भी इरिटेट करेंगे, आपको भी टेंशन में लाएंगे। अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। कोई ने कुछ कहा, एक्सेप्ट करना है उसको, और अपना माइंड लगाकर उसको फिर उसको जवाब देना है। एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, एकदम से उसके पीछे हमें अपनी खुशी गायब नहीं करनी। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है और चिंता जैसा गम नहीं है। आइए हम मेडिटेशन करेंगे बहुत पावरफुल, और उसके बाद में हम खुशी को भी स्प्रेड करेंगे। चलिए, सभी गहरी लंबी सांस लें। जिसमें शीतलता है, निर्मलता है, सागर की गहराई जैसी स्थिरता है। कोई हलचल नहीं, आवाज नहीं, दुख नहीं, सिर्फ सुखद शांति शांति है, मधुर शांति। स्वयं को थोड़े समय के लिए एकाग्र करके आराम की स्थिति में स्थित कर लीजिए और चिंतन कीजिए। आप उस मधुर शांति की यात्रा की ओर जाने के लिए तैयार हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे नीली आसमानी रंग की चमकती किरणों को अपने अंदर आने दीजिए और अनुभव कीजिए आपके फेफड़ों में, अंतःकरण में शांति के प्रकंपन समाते जा रहे हैं और अशुद्धता निकलती जा रही है। आप शांति के नीले आकाश में समाते जा रहे हैं।
शांति की शक्ति से भरपूर आप स्वयं को एक नई दुनिया में अनुभव कर रहे हैं। शांति की शक्ति से स्वयं के अंदर निर्मलता, पवित्रता और शक्तियों की शक्ति का संचार हो रहा है और अंदर में असीम सुख की अनुभूति हो रही है, जो सचमुच एक अनोखा अनुभव है। सिर्फ थोड़े समय तक इस स्थिति में स्वयं को स्थित रखें और आनंद लेते रहें इस सुखद अवस्था का। धीरे धीरे आंखें खोलें और देखें मेरे चारों ओर कैसा शांति का सुखद वातावरण अनुभव हो रहा है। दिन में कई बार इस स्थिति का गहराई से अनुभव करें और अभ्यास करते रहें। ओम। चलिए अनुभव करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लें, ऊपर उठा लें दोनों हाथों को। आशीर्वाद के मोड में, एनर्जी के मोड में। इस प्रकार दोनों हाथों को रखें और अनुभव करें परमात्मा से एनर्जी आ रही है। पूरे शरीर में वो एनर्जी फैल रही है। दोनों हाथों को रखते हुए अनुभव करें परमात्मा से एनर्जी आ रही है, पूरी बॉडी में फैल रही है। पहले ब्रेन एक एक सेल को चार्ज कर रही है, परमात्मा से शक्तियों की बरसात हो रही है। भगवान का हाथ आपके सिर पर रखा है, आशीर्वाद का हाथ। अनुभव करें, अपना हाथ अपने सिर पर रख लें, अपना हाथ, और अनुभव करें भगवान का हाथ, आशीर्वाद का हाथ सिर पर है और उनसे एनर्जी आ रही है और इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ रही है। ब्रेन चार्ज, गला, हार्ट सिस्टम, स्टमक, पैर, पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है, चार्ज हो चुका है। अब वो वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे घर में फैल रहे हैं। सबके सिर पर भगवान का हाथ रखा है और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच। सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, सहयोगी हैं, संतुष्ट हैं, चिंता मुक्त हैं।
तो वाइब्रेशन और फैल रहे हैं। आपके मोहल्ले के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी भाई बहन हैं, उनके अंदर हैप्पीनेस के वाइब्रेशन आ रहे हैं। उनकी चिंताएं, डर, भय सब कुछ खत्म हो रहा है। हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर जा रहे हैं। उनकी चिंताएं दूर हो रही हैं, उनके मन को राहत पहुंच रही है। ऐसे वाइब्रेशन और स्प्रेड हो रहा है पूरे अहमदाबाद में। वो हैप्पीनेस के वाइब्रेशन और हैप्पीनेस के वाइब्रेशन की बरसात हो रही है। एक एक सोल हैप्पीनेस के वाइब्रेशन से फुल हो चुकी है। उनके डर, चिंता, भय सब कुछ समाप्त हो चुका है। हैप्पीनेस के वाइब्रेशन में है वो। अब इंडिया तक पूरे वाइब्रेशन को फैला दें। पूरे इंडिया में हैप्पीनेस का वाइब्रेशन स्प्रेड हो चुका है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सब सुख पाएं। दोनों हथेलियों पर रगड़ लें और पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर, आई एम एनर्जेटिक। पूरे चेहरे पर लगाएं, सिर पर लगाएं। ओम शांति। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी फीलिंग हुई होगी, क्योंकि जैसे हम हैप्पीनेस को देते हैं, आज देखा जाए तो सर्वर जो है वो परमात्मा है और हम सब सोल हैं, क्लाइंट हैं। और हम एक बड़े सुपर सर्वर, सुप्रीम सर्वर है, सुप्रीम सोल है, परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम कोई संकल्प करते हैं किसी के प्रति, उन तक पहुंचता है और उनको वो इफेक्ट करता है। चाहे वो हैप्पीनेस का संकल्प भेजेंगे या टेंशन का संकल्प भेजेंगे। तो आज देखा जाए तो चारों तरफ कोरोना 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 का ही रोना है और डर है, भय है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, ब्लैक फंगस की बात आ रही है, व्हाइट फंगस की बात आ रही है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ आनी है। तो बाहर वातावरण अनस्टेबल है, पर यदि हम यहाँ स्टेबल हैं, हम यहाँ यदि स्टेबल हैं तो सब कुछ स्टेबल है। यदि माइंड सेट है तो सब कुछ सेट है। तो हम यहाँ स्टेबल रहें कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं और मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच है और भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। सब आत्माएं खुश हैं, सब आत्मा, सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। जितना देर हम टीवी देखते हैं, हम व्यर्थ का देखते हैं। हम अपने मोबाइल को 5600 बार टच करते हैं एक बार में, रिसर्च में पाया गया। देयर इज नो नीड, अभी इतनी जरूरत ही नहीं है। उतना समय हम बैठकर मेडिटेशन में हीलिंग करें अपने आप की, और सबको जो वाइब्रेशन देते हैं वो दुआएं इकट्ठी होती है। और जब दुआएं इकट्ठी होती, कहते हैं ना हम कि किसी की दुआएं कबूल हो गई और किसी की नहीं हुई, वो होता कैसे है? अब हमने बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया, सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, अब हमारी दुआएं इकट्ठी हुई। अब हमने भगवान से कहा, भगवान मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम आई है, कोई बीमार है या दुखी है या इसको कुछ कुछ हो गया है, वो ठीक कर दीजिए। तो भगवान हमारे एक सर्वर में चेक करेंगे कि असीता जी, ठीक है, आप कौन सी सिटी से हैं बहन जी? दिल्ली से। दिल्ली से, ओके। चेक किया असीता जी, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि हाँ ये बहुत अच्छा मेडिटेशन करती हैं, इनके खाते में बहुत सारी दुआएं हैं, है ना, 5 लाख दुआएं क्रेडिट है। जैसे अभी बहुत सारा चलता रहता है, मार्केट चलता है, शेयर मार्केट है और जो दुनिया का क्रिप्टो मार्केट है, बहुत सारे मार्केट हैं ऐसे ही, है ना। हमारा जो निवेश है, अभी सबसे बड़ा निवेश है वो दुआओं का निवेश है, सबसे बड़ा निवेश है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन का निवेश है। उसका जो आउटकम आएगा, जो उसकी जो लाभ होगा, जो बेनिफिट होगा, वो अनलिमिटेड है। इसको कहते हैं पद्मा पदम, उसकी गिनती नहीं है इंडिया में और कुछ दुनिया के लिए उसके शब्द ही नहीं बने। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के अनेकों अनेकों दुआएं हमें मिलती है। अब जैसे ही असीता जी ने
रिक्वेस्ट की कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना या कोई भी प्रॉब्लम ठीक कर देना, तो भगवान चेक करेंगे इनके सर्वर में, उनके कार्मिक अकाउंट में कि कितनी दुआएं हैं। चेक किया, सीता जी दिल्ली 5 लाख दुआएं, मांगा कितना, 2000 क्रेडिट हो गए, राइट। अब आपने मेडिटेशन नहीं किया, दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचा, सबके बारे में नेगेटिव सोचा ना, बुरा बुरा सोचा, अब भगवान जी चेक करेंगे, ठीक है, या सीता जी कितनी दुआएं हैं, 0। तो भगवान कहेगा कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, भगवान किसी और सेवा में मस्त है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, दुआएं इकट्ठी करना है। तो आप तो सभी महान व्यक्तित्व के धनी हैं, आप सबको प्रणाम है, आपको सबको दिल से दुआएं हैं, माउंट आबू के तरफ से, हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के तरफ से, सभी दादियों के तरफ से, परमात्मा की तरफ से, कि आप अपने आप को एनर्जाइज करिए, अपने आप को सदा परमात्मा के प्रोटेक्शन में रखिए और अपनी खुशी गायब नहीं करिए, सदा स्टेबल रखिए माइंड को, तो सदा आप खुश रहेंगे। और यही हैप्पीनेस को हाई और टेंशन को बाय बाय है। इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, तो आपको निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत परिवर्तन नजर आएगा। और भी डिटेल वीडियो देखना है तो बीके शक्तिराज यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति। बहुत अच्छा, ईश्वर ने आज बहुत अच्छी एक सभा का निर्माण किया है और हम सभी इकट्ठे हुए हैं। जो इतना अच्छा एक चर्चा विचारणा हुई है, आपने सभी को शामिल किया है, साथ साथ में इन्वॉल्व किया है और बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज को वेरी सिंप्लीफाइड वे बताया है। जैसे अभी अभी कहा कि दुआओं, अभी सच में ये समय है कि दुआओं का खाता तो हमको बढ़ाना ही है और ये बहुत अच्छे गहराई से अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा हमको फायदा भी मिल सकता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेना है और देना है, सुप्रीम सर्जन से लेना है और सभी आत्माओं को देना है, दुआओं का भी इन्वेस्टमेंट करना है। और आपने एक और चीज बताई कि जो बॉल हम जो कलर के फेंकेंगे वही हमको वापस आने वाली है। तो ये भी एक बहुत सुंदर याद रहने वाला एक तरीका है जो आप मेमोरी पावर में भी सिखाते हैं। तो ये हमको भी याद रह गया है कि कौन से कलर का बॉल हमको फेंकना चाहिए, है ना। तो वो एक नॉलेज की बात भी है। तो दुआएं जरूर मिलेगी, अगर हम अच्छे कलर का फेंकेंगे तो हमको वो ही वापस मिलने वाला है। और सोफा सेट, ज्वेलरी सेट वाला भी, ये भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया। सभी सेट है हमारे घर में, ऑफिस में, रिलेशन में, लेकिन फिर भी हम अपसेट है, माइंड अपसेट है। तो ये बहुत सुंदर एक रिमोट कंट्रोल जैसे हमको मिल गया कि ये आप खुद एक इंटरनेशनल मेमोरी मैनेजमेंट ट्रेनर भी है। तो इतना अच्छे से आपने सुंदर तरीके से बताया, तो याद रह गया रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रखना है, तो ये भी बहुत सुंदर तरीके से याद रह गया। और एक लास्ट बात बताऊं तो मुस्कुराते हुए हम कभी भी चिंता नहीं कर सकते। तो ये सही बात है। जनरली हम प्रोफेशन में आते हैं तो जैसे वो पीछे छूट जाता है, तो मुझे तो कई बार बहुत हंसी आती है, तो मैं तो हंस भी लेती हूँ। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि फैमिली फ्रेंड्स में कि हाँ फाल्गुनी को हंसी बहुत आ जाती है, बात तो सही है, लेकिन क्या करें, हंसी से हमको ही एनर्जी मिलती है। अभी साइंस कहता है, तो अभी तो लोग हंसना सीख रहे हैं और अगर हम वो नेचुरल नेचर बनाए तो हमको कितना हैप्पीनेस है, छोटी छोटी चीजों से हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। यस ब्रदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो भी अभी हमने बताया है, तो सिर्फ हम लेक्चर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पावर ऑफ सकाश मधुबन प्रोजेक्ट। उसमें हमारी फाल्गुनी बहन है, यहाँ पर हमारी लक्ष्मी बहन है, शैलजा बहन है, यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, मिठू बहन है, ऐसे बहुत सारे, शैलजा बहन, बहुत सारी बहनें हैं जो बाबा के ऐसे 1 लाख जो डिवाइन सोल है उसमें जुड़े हुए हैं। और हम सब मिलकर वन थॉट, वन टाइम, वन टारगेट, वन गॉड, वन वर्ल्ड फैमिली, एक साथ मिलकर जब हम एनर्जी देते हैं तो उसका इफेक्ट, मिरेकल इफेक्ट आता है। प्रैक्टिकल इंडिविजुअल में तो आता ही है, पर ग्लोबल में भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। ऐसे कई इफेक्ट प्रैक्टिकल हमने मेडिटेशन के किए हैं, इसमें बहुत जबरदस्त चेंज आता है। तो जो भी बीके फैमिली से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि पावर ऑफ सकाश से जुड़े, एनर्जाइज करें। और जो नहीं जुड़े हुए हैं भाई बहने, तो वो यूट्यूब में पावर ऑफ सकाश एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिएगा। तो जो नए भाई बहने हैं, सुबह 6 बजे मेडिटेशन आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
10 बजे मेडिटेशन आता, उसको आप करिए जरूर। तो आप देखेंगे कि आप कैसे एनर्जी को देना है, कैसे हील करना है, उसमें सारा बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में दुआओं को इकट्ठा करने का समय है। यदि जिसके पास कहते हैं ना कि पता चला है कि कफन में जेब नहीं होता है, दुआएं इकट्ठी करो जनाब। तो इस प्रकार से हमें दुआओं को इकट्ठे करना है। जी फाल्गुनी बहन। जी भाई जी, बिल्कुल। पार और सकाश जो है उसी का मतलब है डिस्टेंस हीलिंग। हम कई बार बहुत मतलब फीस देके भी डिस्टेंस हीलिंग की एक फीस देके हम वो लेना चाहते हैं, और कहीं मैंने देखा है, लेकिन ये जो बात है ना वो ब्रह्मा कुमारीज में फ्री ऑफ चार्ज सिखाई जाती है। थोड़ी एडवांस स्टेज है, उससे पहले एक बेसिक मेडिटेशन कोर्स करना होता है, फिर हम ये डिस्टेंस हीलिंग वाला कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जैसे पावर और सकाश में भाई ने बताया, तो वहाँ बेसिक कोर्स का काफी कुछ कवर हो जाता है। तो नए भाई बहन है वो भी अपने हिसाब से सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने याद दिलाई भाई जी, और ये बहुत सुंदर बढ़िया प्रयोग भी रहा है। और आज का जो ये लेसन है, ये सेशन है, ये लेसन और सेशन नहीं है, लेकिन एक प्रयोगात्मक स्थिति में हम सभी आत्माएं जुड़े, और जिन्होंने ये फायदा पाया है वो खुद के साइंटिस्ट बने हैं। सो हमारा समय भी बहुत अभी इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो थैंक यू भ्राता जी, आपने समय निकाला। अभी अभी डॉक्टर नित्यानंद साहा जी का भी एक मैसेज था, उनको भी पर्सनली जानती हूँ, वो भी क्वांटम हीलिंग में किया है। तो बहुत अच्छे ऐसी ऐसी अनुभूति आसपास में होती है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि एनर्जी हीलिंग वाला जो है वो हमको करना ही है, और हम खुद चार्ज रहेंगे तो हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। सो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ अहमदाबाद ICA ब्रांच एंड सभी जो इंडिया की सभी ब्रांचेस, अभी 80+ ब्रांचेस जुड़ी हुई है। जो 13 से शुरू हुई थी शक्ति भाई, वो अभी 80+ हो गई है। अभी 6th वीक चल रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट करके एक फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, तो उसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये अभी 6th वीक चल रहा है, और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम अभी हो रहा है। तो उसमें आपने समय निकालकर हमारी सेवा की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हरित भाई आप हाजिर हैं, अंजलि बहन तो शायद नहीं थी। हरित भाई, अच्छा ठीक है, हरित भाई भी एक बिजी दूसरे प्रोग्राम में शायद अभी उनको जाना हुआ। तो मैं सभी की तरफ से, अहमदाबाद मैनेजमेंट टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ, और जो भाई बहन अभी दर्शक मित्र जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी जो आत्माएं जुड़ी हुई है उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिकॉज ऑफ वो निराकार परमात्मा, उनकी इच्छा अनुसार ही हम अभी मिले हैं, तो उनका तो शुक्रिया कैसे भूलें। सो लाखों लाखों धन्यवाद शिव निराकार परमात्मा का। अभी 2 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर ये सभा बर्खास्त करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।